जितना टाइम आप कोर्ट में बिताओगे उतना आपका लॉ पक्का होते जाएगा। अगर आप क्लासरूम में बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा आई एम अ लॉयर, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एनी पर्सन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन कोर्ट्स लर्न्स लॉ। तो मेरे हिसाब से ये 3 होने चाहिए। लिटिगेशन इज द बैकबोन ऑफ लीगल प्रोफेशन। Unless and until you do litigation for 3-4 years, you are not considered to be an advocate. Hello everyone, I'm Himanshu and we are back on Degrees and Beyond with Dr. Shantanu Jog. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करियर फाउंडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट मैटर्स इन बिल्डिंग अ गुड करियर, एंड नाउ वी विल फोकस ऑन अ वेरी स्पेसिफिक एंड डिमांडिंग फील्ड दैट इज कॉर्पोरेट लॉ. So let's start from the beginning. Sir, you have seen the corporate legal world very closely. So, in your opinion, what truly defines a good corporate lawyer? See, when we talk about career in legal field, right, there are 3 aspects, major 3 aspects. The first one is litigation. The second one is non-litigation and compliance. And third one is when we move to companies as a corporate lawyer, or when we advise companies as a corporate lawyer, you have to be mix of first two, that is litigation and non-litigation. So basically when we see about corporate lawyers, it is a mix of 2 responsibilities, handling litigation and non-litigation. When we talk about corporate lawyer, apart from litigation aspects, which you learn litigation aspects, 4 or 5 qualities you should have. The first thing is that delivering the work which is assigned to you within a designated time frame. आपको जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए. लिटिगेशन एस्पेक्ट्स में मोस्टली ये मिसिंग होता है, बट कॉर्पोरेट लॉयरशिप में जब आप कंपनी के बिहाफ पर काम करते हो तो टाइम इज मनी इन कंपनीज, टाइम इज मनी इन कॉर्पोरेट्स, राइट. सो जितने टाइम आपको दिया गया है उतने टाइम में वो काम कंप्लीट होना चाहिए. सो देयर इज ऑलवेज अ डेडलाइन in corporate lawyership, which is not necessarily there in litigation. This is number 1. Number 2, corporate lawyer होने के लिए आप में क्या qualities होनी चाहिए? So you should have at least 3-4 years of litigation experience, because you cannot dictate terms or you cannot discuss with a litigating or appearing lawyer unless you have worked in litigation. So litigation का अपना एक जेनर है, अपना एक उसका importance है. और जब तक कोई बंदा या कोई भी कैंडिडेट जब तक लिटिगेशन में काम नहीं करता है तब तक वी कैनॉट से कि ही कैन बी अ गुड कॉर्पोरेट लॉयर. बिकॉज लिटिगेशन में आपको एविडेंस पता चलता है, लिटिगेशन में आपको हाउ टू आर्ग्यू पता चलता है, लिटिगेशन में आपको जज के व्यू पॉइंट से कैसे आर्ग्यू करना ये पता चलता है, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स को पता नहीं रहता. सो आई थिंक दैट टू बी अ गुड कॉर्पोरेट लॉयर आपने लिटिगेशन में 3-4 साल पहले एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर काम करना चाहिए. देयर आफ्टर व्हेन वी टॉक फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, लाइक, तो लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क ये स्टूडेंट के इसमें नहीं होता है. एंड लीगल प्रोफेशन फॉर दैट मैटर demands very 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 hard work. Means I would say from other professions, legal profession में जो hard work रहता है वो शायद ही किसी profession में रहता हो. I'll give you a small example. एक after you pass your law degree and then you go for practice, either litigation or non-litigation, कैसा रहता है scenario? The first thing is that the court starts at 10:30. So before that you have to work for 2 hours, prepare for the court. So you have to be in your office, either of your advocate, your senior or something, by 8 o'clock. कोर्ट चलता है 5:30-6 बजे तक. उसके बाद में you have to come home or come to office and prepare for tomorrow's cases. So generally जो advocates के या corporate lawyers के जो office रहते हैं वो evening 6 to 9, 6 to 10 रहते हैं. So already you put in efforts for say 12 hours plus on daily basis. After that, on Saturdays and Sundays you work, because बहुत से लोगों के आउटस्टेशन क्लाइंट्स रहते हैं, आउटस्टेशन विजिट्स रहती है, वो सैटरडे संडे को ही होती है. सो व्हेन यू कम फ्रॉम अ say a culture wherein you enjoy the life in your college, say college period, and thereafter you enter a legal world, say for first 6 months it is a cultural shock कि यार मुझे संडे को भी काम करना पड़ रहा है. But it is a normal scenario in corporate world. 90% of advocates work on Sundays. So it is the only profession wherein you work 24/7. Doctors are one of the profession, they वो emergencies handle करते हैं, but then
Apart from them, only lawyers are one of the profession और एडवोकेसी इज वन ऑफ द प्रोफेशन जहां पर आपको बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है 12-14 घंटे इनिशियल फेज ऑफ योर लाइफ. थर्डली, जब आप कॉर्पोरेट लॉयर करके काम करते हो आफ्टर यू गेन एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग बहुत रहता है. मीन्स व्हेन यू आर अ कॉर्पोरेट लॉयर, से यू आर स्टेशनड एट योर हेड ऑफिस, इफ इट इज इन मुंबई. सो हो सकता है कि आपके कंपनी के अगेंस्ट एक केस दिल्ली में हो, एक केस कलकत्ता में हो, एक केस और कहीं पर हो. सो I have seen corporate lawyers who travel almost 15-20 days say month without a gap. So they don't come home. They keep on traveling court to court, city to city, addressing all legal issues. And सिर्फ legal cases नहीं होते हैं. हो सकता है लैंड एक्विजिशन के केसेस हो सकता है टैक्सेशन के मैटर्स हो सकता है लॉट ऑफ नॉन लिटिगेशन वर्क इज गोइंग ऑन. सो टू पुट दैट एफर्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग में ही बहुत सा टाइम आपका कॉर्पोरेट लॉयरशिप का जाता है. सो ये एक क्वालिटी कि यू शुड बी एबल टू पुट एंड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी रहता है. थर्ड इज नॉलेज ऑफ लॉ. यू आर अ कॉर्पोरेट लॉयर, सो इसमें मेन चीज़ है लॉयर. कॉर्पोरेट तो बाद में आता है, लॉयर पहले आता है. सो लॉयर हैज़ टू नो लॉ. आपको लॉ पक्का होना चाहिए. सो आपका जो फंक्शन है, जिसमें भी आप काम कर रहे हो या जो भी लॉ में आप काम कर रहे हो, तो आपको लॉ का नॉलेज आना चाहिए. वेदर इट इज़ बी कॉर्पोरेट, क्रिमिनल, सिविल, प्रॉपर्टी, आपके उस पर आपकी पकड़ उस पर होनी चाहिए. उसके बाद है रिसर्च कैपेबिलिटीज़, कि अगर आप कॉर्पोरेट लॉयरशिप में जाते भी हो एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग सर्टन कंपनी, सो द डे यू एंटर, वो बोलते हैं भाई ये हमारे 100 केसेस है, आज से आपको इनको देखना है, इसका डिस्पोजल का ये टारगेट है, आप इसको डिस्पोज कर दो. या बैंक में किसी कॉर्पोरेट या बैंक में एज अ लॉ ऑफिसर जाते हैं या कहीं पर भी कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो दे गिव यू द केसेस एंड दे गिव यू द टारगेट, कि इसको इतने टारगेट में या टाइम फ्रेम में काम करना. नाउ व्हाट दे एक्सपेक्ट इज नॉट जस्ट कोऑर्डिनेशन. मैंने बहुत कॉर्पोरेट लॉयर्स देखे हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं, बट व्हेन यू गिव फीडिंग टू सीनियर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फॉर दैट मैटर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किसी लॉयर्स को फीडिंग दे रहे हो, तो दीज ऑल पीपल आर हाईली एक्सपीरियंस, 10-15-20 साल के एक्सपीरियंस वाले रहते हैं. सो आपको रिसर्च करके जाना पड़ता है कि सर दीज आर द फैक्ट्स, दिस इज द लॉ, these are the case laws which I have found out. Now you can add some value to it and then you can plead before the court. So research is one of the quality which you should focus on, or a corporate lawyer should focus on. And last but not the least is art of getting the things done. आपको लोगों से काम करवाते आना चाहिए. मीन्स यू मूव टू और यू अपीयर बिफोर एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज. गवर्नमेंट से कुछ लीगल काम करवाने पड़ते हैं, अप्लीकेशंस रहते हैं, सैंक्शंस रहते हैं. तो ये काम करवाने का जो हुनर है वो आप में होना चाहिए. सो आई थिंक दीज 5 क्वालिटीज शुड बी देयर, कि टाइम फ्रेम में काम करना है. एक है कि लिटिगेशन का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए. उसके बाद में है लॉन्ग आवर्स काम करना है, ट्रैवलिंग का विलिंगनेस रखना है. उसके बाद में रिसर्च की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. ये 5 क्वालिटीज तो आप में होनी ही चाहिए. एकदम एग्जैक्टली एकदम सही कहा सर. सर थोड़ा सा हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को समझते हैं. सर फॉर अ स्टूडेंट हु इज करेंटली परसुइंग द लॉ, हाउ कैन ही develop his foundation for the corporates, or how can he develop his? Okay. See, I think there are 5 lakh odd students or 3.5 lakh odd students in law as at this point of time. Good law schools have also been come up and they are grooming their children really well. So I am very bullish about it. बहुत अच्छा मेरा पॉजिटिव आउटलुक है इनकी तरफ, कि जो लॉ में नई जनरेशन आ रही है वो बहुत इन्फॉर्म्ड आ रही है. अब इसमें 3 चीज़ें हैं कि हमको हमारे जो 5 साल का या 3 साल का आपका लॉ कोर्स होता है उसमें आपको करना क्या है. द फर्स्ट इज योर फंक्शनल नॉलेज, कि आपका लॉ बहुत पक्का होना चाहिए, आपको लॉ तो आना ही चाहिए. सो यू हैव टू स्टडी योर लॉ बहुत, कि आपको रिसेंट केसेस, रिसेंट जजमेंट्स, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, हर एक फैक्ट पे केसेस की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो या करने वाले हो, उसके जो मेन न्यू केस लॉज है, केस स्टडीज है, ये सब आपको फिंगर टिप पर होने चाहिए. उसका रिसर्च आपका पक्का होना चाहिए. द सेकंड थिंग which I would suggest to the students is focus on drafting. Don't rely on AI for drafting, but focus on drafting. Drafting, ye merely having good English is not good drafting, right? There is a difference, because there has to be a legal angle, there has to be an angle of interpretation. So आपका जो सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हम सिर्फ एक पास करने के लिए रखते हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने वहाँ पर ड्राफ्टिंग पे फोकस करना चाहिए,
इवन इफ यू थिंक दैट योर ड्राफ्टिंग इज गुड, इट इज नॉट दैट, राइट? सो आपने जो ड्राफ्टिंग किया है वो किसी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो प्रैक्टिस करता है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसको पता रहता है कि जज उसको कैसे इंटरप्रेट करने वाला है एंड व्हाट जजेस वांट। तो इन दैट केस आपका ड्राफ्टिंग, पिटिशंस हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, अपील्स हो गए, ये सब जितना आपको ड्राफ्टिंग करने मिले जॉइन इंटर्नशिप, वहाँ पर जितना ड्राफ्टिंग वर्क आपको मिले उतना आपने करना चाहिए। ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें 2-3 साल लगते हैं आपको ड्राफ्टिंग में कमांड आने को। सो ये 2-3 साल आपने अगर आपके ग्रेजुएशन में इसको टाइम दे दिया तो देन इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू और स्टूडेंट्स कि फ्यूचर में उनको वो टाइम कम देना पड़ेगा। तीसरा है कि लॉ कहाँ सीखा जाता है? तो लॉ सीखने की एक ही जगह है, वो है कोर्ट। लॉ बुक्स में नहीं सीखा जाता, बुक्स में तो एक बार पढ़ लेते हैं आप। लॉ क्लासरूम में भी नहीं सीखा जाता, लॉ सीखा जाता है कोर्ट में। सो व्हाट आई वुड एडवाइज स्टूडेंट्स इज दे शुड विजिट कोर्ट्स डेली। आप सुनिए कि सीनियर एडवोकेट्स जो है वो आर्ग्यूमेंट कैसे कर रहे हैं, वो कौन से लॉ पॉइंट्स उठा रहे हैं, वो एविडेंस को कैसे यानी एविडेंस कैसे रख रहे हैं या लॉ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, जजेस कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरे एडवोकेट्स उनको काउंटर कैसे कर रहे हैं। जब ये आप देखोगे तो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। जितना टाइम आप कोर्ट में बिताओगे उतना आपका लॉ पक्का होते जाएगा। अगर आप क्लासरूम में बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा आई एम अ लॉयर, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एनी पर्सन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन कोर्ट्स लर्न्स लॉ। तो मेरे हिसाब से ये 3 होने चाहिए। एक, नो योर लॉ वेल। दूसरा, ड्राफ्टिंग आपका अच्छा होना चाहिए एंड स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन इन कोर्ट्स ऑब्जर्विंग द पीपल। सर हम देखते हैं ना कि लॉ स्टूडेंट की जब भी बात आती है और जब भी इंटर्नशिप्स की बात आती है तो मोस्टली फर्म्स और जो भी लीगल एडवाइजर्स रहते हैं वो हमारा सीवी चेक करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एज अ कॉर्पोरेट लॉयर हमारे सीवी किस हिसाब से उस चीज़ का अलाइन होना चाहिए? देखो, 2 चीज़ें हैं। सीवी 2 जगह चेक होता है। एक बार पहले जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं और एक बार बाद में जब आप कॉर्पोरेट लॉयरशिप में जॉब के लिए जाते हैं। हम पहले फेज की बात करते हैं। पहले फेज में आपके सीवी में ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं क्योंकि आपके सीवी पे कुछ रहता ही नहीं है, राइट? सो जस्ट दे सी नेम एंड वो आपसे कितना पढ़े है, कोई सर्टिफिकेशन किया है तो वो देखेंगे और उसके बाद में उनसे बात करके आपके पर्सनैलिटी से वो जज कर लेते हैं कि इनको रखना है कि नहीं रखना है। दिस इज नंबर 1। अब उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। सेकेंडली, व्हेन यू गो फॉर अ जॉब इन अ कंपनी एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, देन दे सी नंबर ऑफ थिंग्स इन योर सीवी। ठीक है, सीवी का फॉर्मेट मायने नहीं रखता, उसमें आपने कितनी इंटर्नशिप्स की हुई है वो मायने रखता है। नंबर 2, आपने कितना एक्सपोजर लिया है या कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस किए होंगे तो वो मायने रखता है, बट इंश्योर कि वो टफ सर्टिफिकेशंस है विच आर टफ टू पास। नॉर्मल सर्टिफिकेशंस को कोई देखने वाला नहीं है। जितनी आपकी आर्टिकलशिप्स और जितनी क्वालिटी आर्टिकलशिप्स आपने की हुई है वो मायने रखेगा और उसके हिसाब से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। ये भी आपने कहा कि इंटर्नशिप्स करना ज़रूरी रहता है। तो इंटर्नशिप एज लाइक किस प्रकार से हम देखें कि यार इंटर्नशिप तो हम मिल जाती है, ठीक है, एज वी आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो हम लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि इंटर्नशिप पहले करे कहाँ, टॉप टीयर 1 फर्म में जाए, टीयर 2 में जाए या फिर किसी एनजीओज में शुरू करे। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? देखिए, इंटर्नशिप्स इन लॉ पर्टिकुलर, दे आर ऑफ वेरी डिफरेंट नेचर देन इंटर्नशिप ऑफ अदर प्रोफेशंस, राइट? एक बात ध्यान में रख लो, भले ये बात कड़वी है, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगे, बट 1 महीने की इंटर्नशिप में आप कुछ नहीं सीखते हो, ठीक है? 1 महीने की इंटर्नशिप में आपको यही पता लगने में लग जाता है कि कौन सा सेक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है? आपको अगर इंटर्नशिप करना है तो इंटर्नशिप का मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स होना चाहिए, जहां पर जिसके पास में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो आपको सीरियसली ले और आपको कुछ काम दे। अगर मुझे पहले ही पता है कि आप मेरे पास सिर्फ 1 महीने के लिए आ रहे हो, तो 90%, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट 90% ऑफ पीपल डोंट टेक यू सीरियसली। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू। क्यों? क्योंकि आप 1 महीने बाद जा रहे हो, उसके बाद आप उसके पास में कभी नहीं आने वाले हो, तो ना उसका सीरियसनेस रहता है ना आपका सीरियसनेस रहता है। बट व्हेन यू गो फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स, 1 ईयर और सो, देन उसका इंटरेस्ट बनता है, वो भी आपको बहुत इंटरेस्ट से सिखाता है। लॉयरशिप और एडवोकेसी इज सच प्रोफेशन
जहां पर आपको इंटर्नशिप में ग्रूमिंग होता है। मैंने ऐसे ऐसे लॉयर्स देखे हैं कि जो डे 1 पर मर्डर केस हो गया या बहुत बड़ा लैंड केस हो गया, ये डे 1 पर अपने ट्रेनीज को देते हैं कि नाउ रिसर्च एंड गिव मी दैट, और इंटर्न्स बहुत अच्छा करते हैं इसमें, राइट, बट दैट इंटर्नशिप ड्यूरेशन शुड बी ऑफ 6 months। नंबर 2, इंटर्नशिप्स कहाँ करना चाहिए? एनजीओज, नो, एनजीओज में कुछ सीखने को नहीं मिलता, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, स्टार्टअप्स, नो, स्टार्टअप्स में नहीं करनी चाहिए। उसके रीजन अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में बता दूंगा। यू शुड ज्वाइन एन एडवोकेट हु हैज अ गुड प्रैक्टिस, जिनके पास काम बहुत है और जहाँ पर एक्सपोजर वेराइट टाइप ऑफ ये है। बहुत बच्चे मेरे पास एक नोशन से आते हैं, सर हमको आईपीआर में इंटर्नशिप करनी या हमको कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप। ऐसे इंटर्नशिप मत ढूंढिए, इंटर्नशिप ऐसी ढूंढिए जहां पर आपको सब एक्ट्स में एक्सपोजर दीजिए। जहां पर आपको सब एक्ट्स में या सब लॉज में एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसे एडवोकेट्स के पास या ऐसी लॉ फर्म्स के पास अगर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिले तो वो कीजिए, दैट रियली हेल्प्स। सर इसी के साथ में अगर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अगर हम करते हैं एज लाइक कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएफए हो गया, तो क्या ये हमारे सीवी में एक एज प्रोवाइड करता है जब हम 100%, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं? 100%। देखिए कुछ चार्टर्ड कोर्सेस है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, या फिर हमने जैसा आपने बोला सीएफए हो गया, CFA। राइट। सो दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस। आप लॉ का भी आपके पास बैकग्राउंड है और सीए करोगे तो फाइनेंस का आएगा, सीएफए करोगे तो सिक्योरिटी मार्केट्स का आएगा, कॉस्टिंग करोगे तो कॉस्टिंग का आएगा, कंपनी सेक्रेटरी करोगे तो कॉर्पोरेट लॉ का आएगा। बट जो मैंने बोला था कि ये कोर्सेस पास करना टफ है, 10-12% लोग जो इनमें एडमिशन लेते हैं वो पास होते हैं, राइट। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकता है, आपके लॉ के डिग्री से भी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये ऐसे कोर्सेज करने चाहिए, क्या बिल्कुल करने चाहिए, दैट विल गिव यू बूस्ट टू योर करियर इफ यू वांट टू गो इन जॉब, राइट। नंबर 1। नंबर 2, बाकी के जो कोर्सेस है, जो सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन एनरोल कर लेते हो और आपके पास में एक डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाता है, दे डोंट हैव एनी वैल्यू, दे डोंट कैरी एनी वैल्यू। जो एम्प्लॉयर्स है वो उसको कोई भी ज़्यादा ये नहीं देते। तो जो टफ सर्टिफिकेशंस है वो करने चाहिए, जो नॉर्मल सर्टिफिकेशंस है वो करने चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट। आपको नॉलेज के लिए करना है तो आप कीजिए। सर सीजीपीए का पे आपका क्या कहना रहेगा? पार्डन? सीजीपीए, सीजीपीए अगर के हम बाद सीजीपीए देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज और हमारे लॉ स्कूल भी कहता है कि तुम्हारा सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि डज इट रियली मैटर्स? जिंदगी में अगर सीजीपीए की मैं अगर बात करूं लॉ करियर में, ठीक है, तो सीजीपीए का रिलेवेंस जिस दिन आप लॉ स्कूल से बाहर हो जाते हो उस दिन खत्म हो जाता है। सीजीपीए का कोई रिलेवेंस नहीं है। कोर्ट आपको ये नहीं पूछता कि आपका सीजीपीए कितना है, कोर्ट पूछता है आप बताओ आपके पास में क्या है और मैं उसके हिसाब से जजमेंट दूंगा। ये नंबर 1 हो गई। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सीजीपीए कितना भी खराब रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपको क्लाइंट को केस जीत कर दे रहे हो, तो सीजीपीए का कोई रिलेवेंस नहीं। नंबर 2, अगर आप लिटिगेशन कर लिए, पास हो गए लिटिगेशन में, 2 साल प्रैक्टिस कर लिए और उसके बाद कॉर्पोरेट लॉयरशिप में गए, तभी भी सीजीपीए कोई नहीं पूछने वाला है। आपका पूरा इंटरव्यू जो हो रहा है वो आपके एक्सपीरियंस पे हो रहा है। तो आपका, मैंने अभी तक, हमने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स के, जिंदगी में कभी हमने उनको सीजीपीए नहीं पूछा, आपको क्या आता है, आपने क्या इंप्लीमेंट किया है, आपने ये केस में स्टैंड क्या लिया है, ये रिसर्च कैसा किया है, आपका अप्रोच क्या है केस के बारे में, इसी पे बात होती है। सीजीपीए के बारे में कोई बात नहीं। सीजीपीए कब इंपॉर्टेंट रहता है कि जब एक क्राइटेरिया लगता है कैंपस इंटरव्यूज के लिए कि हम इतने सीजीपीए के ऊपर के ही लड़कों को हम कैंपस में बैठने देंगे, वहां पर सीजीपीए का रिलेवेंस है। उससे ज्यादा सीजीपीए का रिलेवेंस मुझे लॉ फील्ड के लिए नहीं लगता। सर एक और सवाल था कि आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत लोग कंफ्यूज होते कि वेदर टू गो फॉर लिटिगेशन और गो फॉर कॉर्पोरेट्स, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पाथ हमें सही चुनना चाहिए? सी, litigation is the backbone of legal profession. Unless and until you do litigation for 3-4 years, you are not considered to be an advocate, right? You can be a LLB, Yeah. right? You are not an advocate, you are not a lawyer. So जिसने litigation नहीं किया हम उसको lawyer नहीं बोल सकते, नंबर 1।
दूसरा है कि लिटिगेशन से जो आपको एक्सपीरियंस होता है, लिटिगेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें देखिए, लिटिगेशन के मैं कुछ इंस्टेंसेस आपको बताता हूँ। लिटिगेशन में होता क्या है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कैसे? आप रोज केसेस पढ़ते हो, रोज केसेस में अपीयर होते हो, तो आप बाय रिसर्च जाते हो, तो आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी जो है वो आपकी लिटिगेशन करते वक्त बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। आर्ग्यूइंग स्किल्स आपकी डेवलप होती है, जितने बार आप कोर्ट के सामने जाओगे, गलतियां करोगे, सीखोगे। एंड कोर्ट्स आर वेरी कंपैशनेट। मैंने कभी किसी कोर्ट को, किसी जूनियर को डांटते हुए नहीं देखा कि उसने गलत आर्ग्यूमेंट किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाई कोर्ट्स जैसे भी कोर्ट्स अप्रिशिएट करते हैं, दे एनकरेज यंग स्टूडेंट्स टू आर्ग्यू द मैटर, राइट। सो वहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। यू हैव टू गो एंड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको आर्ग्यू भी करना है, घर जाके पढ़ना भी है, दूसरे दिन की केसेस, फैक्ट्स भी जमा करना है, राइट। एंड चौथा है लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। सो लिटिगेशन आपको कैसा है कि आपका स्टैंड आपको छोड़ना नहीं है। एडवर्स कंडीशन रहते हैं, सामने बड़े एडवोकेट्स रह सकते हैं, बट देन यू ऑलवेज टेंड टू फाइट विद अदर्स, ठीक है। तो आपका कैरेक्टर धीरे धीरे लिटिगेशन में बिल्ड होता है। एक बार ये कैरेक्टर बिल्ड हो गया 3-4 साल में, कि नेवर से डाई एटीट्यूड, तो आपका वो कैरेक्टर लिटिगेशन में बिल्ड होता है। सो मेरे हिसाब से लिटिगेशन के सिवा या लिटिगेशन एक्सपीरियंस के सिवा यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ अ लॉयर बिफोर एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट लॉयरशिप। आई थिंक 3-4 साल का या भले 2 साल का लिटिगेशन का एक्सपीरियंस लो, एंड देन यू कैन मूव, देन यू कैन डिसाइड आपको लिटिगेशन में इंटरेस्ट है या कॉर्पोरेट लॉयरशिप में इंटरेस्ट है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो सर क्या ये सही नहीं है कि हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि सेकेंड ईयर से जितना अर्ली आप अपना गोल सेट कर ले, फॉर एग्जांपल आपको कॉर्पोरेट्स में जाना है या लिटिगेशन में जाना है, तो क्या ये सही है? हमें पहले से ही प्रीडिटरमाइंड होना चाहिए या गलत है, वी शुड वेट फॉर आवर एक्सपीरियंस? गलत है। सेकंड ईयर में बच्चे का एज क्या होता है? 18-19 ईयर्स। 18-19। 19 ईयर्स। 19 ईयर्स में वो इतना मैच्योरिटी होता नहीं कि वो अपने ज़िंदगी का फैसला ले सके, नंबर एक। नंबर तो उसका एक्सपोजर नहीं होता, उसने दुनिया देखी हुई नहीं रहती। अगर वो टोटल ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन रोज कोर्ट जाता है तो उसको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आफ्टर ग्रेजुएशन 2-3 ईयर्स के बाद उसने डिसीजन लेना चाहिए कि उसको फिर कहाँ जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है या लिटिगेशन में रहना है। एक बात याद रखिए, जिसने लिटिगेशन किया है वो कॉर्पोरेट में जा सकता है, जो सिर्फ कॉर्पोरेट में काम किया है वो लिटिगेशन में सक्सेसफुल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बट जिसने लिटिगेशन किया है वो कॉर्पोरेट में 100% सक्सेसफुल होने वाला है। सो इन दिस सिनारियो आई थिंक कि लिटिगेशन फर्स्ट, कॉर्पोरेट शुड आफ्टरवर्ड्स, एंड यू शुड गिव योरसेल्फ टाइम, 3-4 ईयर्स। देखो, लॉ प्रोफेशन बहुत स्लो प्रोफेशन है, ओवरनाइट सक्सेस उसमें नहीं मिलती है, पेशेंस रखना पड़ता है। बट जब सक्सेस मिलती है तो वो बहुत अलग लेवल की रहती है। 10-10 साल, 15-15 साल लोग काम करते हैं, बट देन वो लेवल पर पहुंच जाते हैं। यू नो, फाइनेंसेस के बारे में तो मैं बात नहीं करता हूँ, बट एक एक अपीयरेंस के लोग लाखों में चार्ज करते हैं। 2 मिनट के अपीयरेंस के अगर कोई आपको लाखों दे रहा है, तो आपको वो कैरेक्टर और वो नॉलेज बिल्ड भी करना, एंड दैट कम्स थ्रू लिटिगेशन। सो इसलिए मेरे हिसाब से लिटिगेशन फर्स्ट, कॉर्पोरेट शिफ्ट। कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है ड्यूरिंग दिस फील्ड। सो डज नेटवर्किंग रियली मैटर्स इन दिस प्रोफेशन? Yes, networking with every profession networking matters. Relevant networking रहना चाहिए, और नेटवर्किंग मैटर्स मीन्स आपने करना चाहिए नेटवर्किंग। दैट्स व्हाट आई फील। That's exactly right, sir. Sir, let's talk about a transition from college to work. सर, जो हम लोग समझते हैं कि जो हम पढ़ते हैं इन लॉ स्कूल, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अर्न करते हैं इन आवर इंटर्नशिप्स, तो मैटर ज़्यादा क्या करता है, हमारा थ्योरी पार्ट या हमारा प्रैक्टिकल? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पार्ट। थियरी पार्ट मैटर नहीं करता। बहुत लोग हैं जो मैंने देखे हुए हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर, बहुत CGPA कंसेप्ट अभी आया, पहले तो नहीं था, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लॉयर्स, राइट। प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिस में जितने आप एफर्ट्स डालोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, नंबर वन। लॉ थोड़ी सी यूनिक फील्ड है, उसमें करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ पेपर पे काम नहीं चलता। बट सर ऐसा कहते हैं कि थ्योरी इज द फाउंडेशन फॉर योर प्रैक्टिकल, तो अगर हमारा थ्योरी अगर हम उसमें पक्के नहीं रहेंगे तो थियरी में तो आपको पक्का होना ही है, तो क्योंकि हमारा लॉ practical- ये एक ही प्रोफेशन है जहां पर आप रोज घर में जाके पढ़ते हो,
हाँ। तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है आपकी लाइफ का, है ना। कौन सा दूसरा प्रोफेशन है जो रोज रात को बुक लेके बैठ रहा है? एक भी प्रोफेशन नहीं है, राइट। डॉक्टर्स रोज बुक लेके नहीं बैठ रहे हैं, राइट। लॉयर इज द ओनली प्रोफेशन कि रोज आप केस पढ़ते हो, रोज आप बुक पढ़ते हो, रोज आप केस पढ़ते हो, रोज। तो थियरी थी आपकी डे बाय डे पक्की हो रही है। आपने एक बार लॉ में एडमिशन ले लिया तो ये पक्का समझना है कि आपको रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है। वो होने ही वाला है, प्रोफेशन ही करवा रहा है आपसे। बट आप जब तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट थियरी नहीं समझते, तब तक आप उसमें आगे नहीं जा सकते। तो मेरे हिसाब से जब आप स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप इज अ ब्रिज बिटवीन योर सक्सेसफुल करियर एंड यानी इट इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम स्टूडेंटशिप टू करियर प्रोफेशनल। तो इसमें आपको इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जितने लॉन्ग ड्यूरेशन की इंटर्नशिप आपको मिले और जितना एफर्ट्स वो आपको, जितना बर्डन है उतना, जितनी बर्डन वाली इंटर्नशिप ज़्यादा, जितना काम वहाँ पर ज़्यादा, उतना आपके लिए फ्यूचर में ईजी होने वाला है। अदरवाइज आप 23-24 में अगर लॉयर हो गए, 5 ईयर्स का कोर्स रहता है, और उसके बाद 4 साल आपने सीखने में गवा दिए या वार्म अप में गवा दिए, तो 28, 29, 30 तो वो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन इंटर्नशिप्स इन colleges. So speaking about this theory, what according to you is the most or least important subject that we learn in a law school? You are asking both categories, Both right? categories, Most important. yes. In Indian context? Yes, in Indian context. In Indian context. Most important, Constitution, Contract Act, Okay. Criminal laws and Civil laws. ये तो most important है. And evidence. ये 5 चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट की रोजमर्रा की जिंदगी में वो काम में नहीं आते हैं, ह्यूमन राइट और समथिंग लाइक दैट, कि एनवायरमेंटल लॉज, ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम में नहीं आते हैं। कमर्शियली भी इनकी बहुत वैल्यू या बहुत डिमांड मार्केट में नहीं है। सो आई थिंक दीज 2 सब्जेक्ट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सो कोई मतलब नहीं है। सो ये 3-4 जो लॉज है वो पढ़ लो, बट बहुत ज्यादा काम में नहीं आते। सर अपार्ट फ्रॉम दिस मूड कोर्ट करके भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं किसी कॉलेजेस में, तो डज इट रियली मैटर्स? मूड कोर्ट्स मैटर। मूड कोर्ट्स में कैसा है, आपका पर्सनालिटी ग्रूम होता है। जितने ज्यादा मूड कोर्ट कंपटीशन में आप जाओगे, उतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि रोज ही मूड कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका थियरी लेक्चर होने से ज्यादा मूड कोर्ट ही होना चाहिए। आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, सम माइट डिफर, बट आई एम ऑफ दैट ओपिनियन कि मूड कोर्ट मैटर्स, वो हेल्प करता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर थोड़ा सा साइड चेंज करते हैं। सर जब भी हम देखते हैं ना, एक और स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हैं, कि दे आर वंडरिंग टू वेदर टू जॉइन अ स्टार्टअप लीगल फर्म और टू जॉइन अ tier 1 or tier 2 firm like a Tree Legal, a Merchant Mangaldasan. तो what's your view on that? इसमें 2-3 एस्पेक्ट है। सबसे पहला है कि जब आप स्टार्टअप लीगल फर्म के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं उसका जो डेफिनेशन समझ रहा हूँ स्टार्टअप लीगल फर्म का, वो 1 साल एक्सपीरियंस टू 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वो से। कोई भी लीगल फर्म जब आप ज्वाइन करते हो, तब ये देखिए कि वहाँ पर आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है। इफ यू आर ज्वाइनिंग अ लीगल फर्म जहाँ पर आपको 100 केसेस हैंडल करने को मिल रहे हैं, तो दैट इज अ गुड लीगल फर्म, वो स्टार्टअप रहे या कुछ भी रहे। बट अगर ऐसी लीगल फर्म जहाँ पर आपको बहुत नंबर ऑफ केसेस हैंडल करने को नहीं मिल रहे हैं, तो वो आई थिंक यू शुड नॉट ज्वाइन। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच गोज अननोटिस्ड। बड़ी फर्म्स में आपको एक्सपोजर मिलता है, बड़े मैटर्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज अ गुड एस्पेक्ट, आई डोंट डाउट अबाउट इट। बट छोटी या मिड साइज लीगल फर्म में यू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मेन लॉयर और मेन एडवोकेट, तो आपको उनसे डायरेक्ट सीखने को मिलता है। बड़ी लीगल फर्म्स में देयर आर लेयर्स, तो जैसे अगर आप बहुत बड़ी लीगल फर्म्स में है, फिर उनके जूनियर्स, सो यू एंड अप इन रिपोर्टिंग टू अ पर्सन हु इज से 3-4 years सीनियर टू हिम, तो उससे आप ज्यादा सीख नहीं पाओगे। सो आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपको मेंटर कर रहा है, और आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, ये ध्यान में रख के आपने लीगल फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। साइज डजंट मैटर, नंबर ऑफ केसेस यू हैंडल, और आपको मेंटरिंग कौन करने वाला है, आपका डायरेक्ट अप्रोच किससे है, ये दिमाग में रख के आपको लीगल फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। सर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोजर ज्यादा जहां मिले उस साइड ज्यादा हमें जाना चाहिए। यस सर इसी के साथ में अगर हम देखें तो कंपेयर टू tier 1 tier 2, सर सैलरी में भी तो डिफरेंस पड़ेगा ना।
सैलरी में तो डिफरेंस पड़ेगा। तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? सी एडवोकेसी प्रोफेशन इन इंडिया, पहले 5 साल सैलरी भूल जाओ, ठीक है। अगर आप 5 साल सैलरी भूलने के लिए रेडी हो तो आपका प्रोफेशन या आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले 5 साल एडवोकेसी प्रोफेशन में आपको स्किल्स डेवलप करने पे रहना है। अगर आपको पहले 5 साल 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए महीना भी सैलरी मिली, बट आपने एक भी क्रिमिनल केस आर्ग्यू नहीं किया, एक भी कुछ आर्ग्यू नहीं किया, तो दैट डजंट मैटर। आपको एक्सपोजर कितना मिलता है इस पर फोकस रखो। सैलरी 3-4 साल बाद मिलने ही वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, और वो बढ़ते तब रहेगी जब आप पहले स्किल्स का फाउंडेशन पक्का करोगे। सो फोकस मोर ऑन एक्सपोजर रादर देन सैलरी, स्पेसिफिकली इन लॉ प्रोफेशन। हमारा प्रोफेशन बाकियों से अलग है। लीगल प्रोफेशन एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। आपकी एक गलती और आदमी जेल में जा सकता है, राइट? सही बात। आपकी एक गलती और आदमी की प्रॉपर्टी या उसका घर उससे बिक सकता है। ऐसा कोई बाकी प्रोफेशन में नहीं होता, राइट? सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो जितना आपको एक्सपोजर ज्यादा मिले, जितना परफेक्शन आपका ज्यादा है, उस तरीके से आप काम करना चाहिए। सैलरी के पीछे इनिशियली मत भागो। अवर प्रोफेशन जितना हार्डवर्क है उतना पैसा भी हमारे प्रोफेशन में है, बहुत पैसा प्रोफेशन देता है। सो फोकस ऑन स्किल्स, नॉट ऑन सैलरी एट इनिशियल स्टेज। सर, एडिंग टू दिस, स्टाइपेंड्स पे आपका क्या मतलब ओपिनियन रहेगा? जो हम इंटर्नशिप्स के वक्त कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो द एडवाइजर द फर्म शुड प्रोवाइड मी स्टाइपेंड फॉर दैट। स्टाइपेंड तो ठीक है, वो पर्सन पर्सन की बात है। हमारे फर्म में हम स्टाइपेंड देते हैं, कोई फर्म में स्टाइपेंड नहीं देते हैं, बट एक्सपोजर पे फोकस करना है, ठीक है। वो जो भी कुछ स्टाइपेंड आपको मिलता है, ठीक है, वो फोकस उस पर 2-4 महीने के लिए अगर फोकस रख के आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो लर्निंग पहले, लर्निंग इज प्राइमरी, उसके साथ स्टाइपेंड मिलता है तो दैट इज गुड पार्ट। सर, अभी आपने आई स्किल्स पर्सनली बिलीव कि स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देना चाहिए, बट इट इज अप टू ईच एंड एवरी एडवोकेट। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सर, अभी आप कुछ देर पहले आपने कहा कि स्किल्स बहुत मैटर करते हैं इन चीज में अलोंग विद एक्सपोजर। तो व्हाट आर सम बेसिक स्किल्स जो इस फील्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो हमें लॉ स्कूल भी नहीं सिखा पाता है? सी 3-4 स्किल्स जो है ना, वो लॉ स्कूल में आपको नहीं सिखाया जाएगा, कोई भी लॉ स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। पहला है प्रोफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो। फिर आप अगर जैसे यानी जजमेंट सर्च कर रहे हो, या वहां से भी बाहर जाके जो आज की रिलेवेंट टेक्नोलॉजी है, या जो सारे वो लॉ स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, बट आगे की जिंदगी में वो बहुत काम में आता है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ये आपको पैरेलली डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लॉ स्कूल में नहीं सिखाया जाता और जो कॉर्पोरेट्स में या प्रोफेशन में बाद में काम में आता है, दैट इज कमर्शियल विजडम और फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंस क्या होता है, उसका रिलेवेंस क्या है, कंपनीज का पैसा कैसे कमाती है और उनके पेन पॉइंट्स क्या रहते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और कमर्शियल विजडम पे आपने काम करना चाहिए। तीसरा है, बहुत से लॉ स्कूल्स में सिखाते हैं, बट यानी नेशनल लॉ स्कूल्स या जो लॉ स्कूल्स है उनको छोड़ दो, बट बाकी जो लॉ कॉलेजेस है उसमें कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है। तो कम्युनिकेशन आई थिंक वो वहां पर सिखाया नहीं जाता है लॉ स्कूल में, इसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स डाल के सीखना पड़ेगा। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल विजडम और फाइनेंशियल लिटरेसी और कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से मास्टर कर ले, राइट, तो इन दैट केस फिर आगे आपकी थोड़ी जर्नी इजी हो जाती है। सर, एक और सवाल यही आता है कि लॉ स्कूल ठीक है, बट अगर हम देखें कि कंपेयर अगर हम करते हैं नॉर्मल गवर्नमेंट लॉ स्कूल्स एंड एनएलयूज, सो मेनी स्टूडेंट्स आर वंडरिंग कि यार एनएलयू टैग मिलेगा तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहेगी, या फिर सिम्बोसिस का मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि डज इट रियली मैटर्स, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है इस फील्ड में? प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है। सी मेरे पास अगर 2 सीवीज आते हैं, वन विथ अ नेशनल लॉ स्कूल टैग एंड वन पर्सन विथ से हु हैज स्पेंड, अभी बहुत से लॉ कॉलेज में तो बच्चे जाते भी नहीं है, वो कोर्ट में ही पड़े रहते हैं। सो आई विल प्रेफर दैट पर्सन, एनीबॉडी विल प्रेफर दैट पर्सन, क्योंकि उसके नॉलेज का लेवल ही अलग होता है। वो कोर्ट में अगर जिसने 3-4 साल गुजार लिए तो उसका टैग, यानी दैट इज द थिंग, क्योंकि
सी हमारा प्रैक्टिस वाला प्रोफेशन है, वी आर हमारा प्रोफेशनल से डिग्री है, तो वी आर मेड टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, ठीक है, हम थियरी वाले नहीं, वी आर नॉट लिटरेचर गाइज, राइट, कि हम कागज पर नहीं बने, हमको जमीन पर काम करना है। तो जिसने काम करके आता है, भले वो कोई भी लॉ स्कूल से हो, हार्डली मैटर्स। हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन ग्रूमिंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इन लॉन्ग रन ये फर्क कोई मायने नहीं रखता। दैट्स वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस सर। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लिसनर्स की तरफ से। इफ यू डिसाइड टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट्स, ठीक है, एंड यू गॉट रिक्रूटेड एज apart from the corporate or legal advisor, so what your thoughts on this career switch? सी एडवोकेसी करने के लिए आपको पैशन लगता है, राइट? तो अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो वो अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट नहीं है और आपको अगर दूसरी जगह करियर बनाने की इच्छा है तो आप लीजिए, लीगल डिग्री विल हेल्प यू इन दैट। बहुत से एचआर में लोग हैं कि जो लॉ के डिग्री पे एचआर में गए हैं, दे आर डूइंग गुड। मेनी ऑफ द लॉयर्स, उन्होंने 1-2 साल प्रैक्टिस की, उनको नहीं जमा है। सी हमारा प्रोफेशन ओपन प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन में कोई भी आ सकता है, राइट? एन आर्ट्स ग्रेजुएट कैन कम, सॉरी, जो बच्चे ने 12th में आर्ट्स किया है या 3 इयर्स लॉ में जाते हैं, तो जिसने आर्ट्स बीए किया है, बीकॉम किया है, इंजीनियरिंग किया है, कोई भी प्रोफेशन से हमारे यहाँ पर बंदा आ सकता है। तो अवर प्रोफेशन इज अ ओपन प्रोफेशन, वी वेलकम एवरीबॉडी। जिसको आना है आओ, जिसको पढ़ना है पढ़ो, ओपन प्रोफेशन है। और बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं कि वो लॉ छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। हमारे प्रोफेशन में वो यूनिकनेस है कि अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लॉ में प्रैक्टिस नहीं किए तभी भी चलेगा, आप कहीं पर भी जाओ, यू विल बी सक्सेसफुल। जस्ट बिल्ड योर कैरेक्टर ऑफ लॉयर। फिर आप नहीं करते हो खुद का बिजनेस, बहुत बिजनेसमैन है जिन्होंने लॉ किया है बट दे आर डूइंग वेरी गुड इन बिजनेसेस, राइट? बहुत लोग हैं कि जो अलग अलग प्रोफेशंस में है, कि जो लॉ करके रखे हैं बट अलग प्रोफेशन में, टीचिंग में है, कुछ बहुत चीजों में, राइट? और वहां पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज एक एज प्रोवाइड कर देगा हमें कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं, लॉ ऑलवेज विल प्रोवाइड यू एज। सर आपके हिसाब से 5 ईयर लॉ प्रोग्राम और 3 ईयर लॉ प्रोग्राम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपोजर हमें कहाँ मिलेगा? सर देखिए, डिपेंड्स अपॉन मींस आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। इसमें एक थोड़ा सा वाइड आंसर मैं देना चाहूंगा। जनरली जो 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम में आते हैं वो कमिटेड आते हैं कि मुझे जिंदगी में लॉ ही करना है, ठीक है? सो वो 5 इयर्स प्रोग्राम में आते हैं। सो दे एंटर एट द एज ऑफ 18 एंड से पास एट द एज ऑफ 23। जो 3 इयर्स लॉ प्रोग्राम में आते हैं उनका 12th में डिसाइडेड नहीं रहता कि उनको लॉ करना है। सो दे परस्यू बीकॉम और एनी अदर ग्रेजुएशन कोर्स एंड देयर आफ्टर वो 3 साल बाद डिसाइड करते हैं कि नाउ इट इज राइट टाइम टू गो फॉर लॉ, राइट? अब दोनों के अपने प्लस है। यहाँ पर 1 साल ज्यादा लगता है, हाँ, 3 + 3 6 इयर्स ज्यादा लगते हैं। तो एट द एज ऑफ 24 यू बिकम लॉ, इट बिकम्स इंटीग्रेटेड पार्ट। हाँ, तो थोड़ा लेट होता है एंट्री में आने के लिए। देखिए, करियर बनाने के लिए सबसे गोल्डन रूल है कि जितने अर्ली आप इंडस्ट्री में एंट्री लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले 4 साल सबके लिए सिमिलर है। तो जो पहले एंट्री लेना है आपको, 21-22 साल की उम्र में आपको एंट्री लेनी चाहिए, वेदर इट इज इंटर्नशिप और एनीथिंग, राइट? तो मुझे ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग इन कोर्ट्स, यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर टेकिंग, ये दोनों ठीक ही, 1 साल का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच सर। Hey guys, if you like this episode, so stay connected with Degrees and Beyond, and don't forget to like, share and subscribe Degrees and Beyond. We will be back soon with another topic. तब तक के लिए keep learning, keep growing. Thank you so much sir for joining us today. Thank you very much.